Okay, good morning, everybody. Good morning, sir. We are just starting. कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? हेलो। सर एक्सेस 3 का कर लिए थे, इनवैलिड कोड तक के देख लिए थे। एक्सेस 3 में क्या बताया था मैंने? राशि पांडे, एक्सेस 3 में क्या पढ़ाया था मैंने? सर ये एक्सेस 3 नॉन वेटेड कोड है और और क्या बताया था? उसके उसका बाइनरी कन्वर्जन हम्म। उसका उसको लिखते कैसे हैं, उसके उसके इनवैलिड कोड्स तक के पढ़े थे। इनवैलिड स्टेट्स कौन कौन से बता दिया था? यस सर। यस और नो? यस सर। यस। एक्सेस 3 एडिशन बड़ा बताया था क्या? नो सर। नहीं बताया। चलो, so today we will start एक्सेस 3 एडिशन. ओके, तो आज करते हैं. Is it visible? Yes, sir. Okay. So today we will start about the excess 3 एडिशन. जिस तरह से आपने BCD एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखा था, एल्गोरिथम होता है, ठीक उस प्रकार से इसका भी एक्सेस 3 एडिशन का भी एल्गोरिथम होगा. ओके, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस 3 जो कोड है हमारे पास, दो दो नंबर रहेंगे, उसी को ऐड करेंगे. उसको ऐड करने पे हम लोग देखते हैं कि कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं. ओके, सपोज दैट नो कैरी मीन्स कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ नो कैरी देन सब्ट्रैक्ट डबल जीरो डबल. ठीक है, डबल जीरो डबल वन सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सम टाइप. ठीक. सेकंड है इफ देयर इज कैरी. दो ही चीज हो सकता है, या तो कैरी हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर नहीं कैरी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डबल जीरो डबल वन, एंड इफ देयर इज कैरी देन ऐड करेंगे क्या? डबल जीरो डबल वन को ऐड करेंगे. यही आपको स्टेप्स फॉलो करना है. ठीक? तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 plus 3. Okay, 5 plus 3, basically it is equal to 8. Okay, so if we represent this 5 in excess 3 code, then what we write? 1 triple 0, right? And for 3 in excess 3 we may write 0 1 1 0. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. यस सर। Now when we add this bit by bit,
then 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1. So here we are seeing that there is no any carry. So what we do? Subtract double 0, double 1. Okay. So if we do subtraction, then 0 minus 1 is equal to 1, right? 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1. सो बोरो कहाँ से करेंगे? इससे करेंगे, तो इससे करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अगेन 1 विथ बोरो 1, तो यहाँ से बोरो कर दिया, जीरो हो गया ना। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. So this would be your answer, and this is equivalent to 8 in decimal. Okay, I think it is clear to all of you. Okay, now question number 2 is 37 plus 28. Basically, it is equal to 65. Now represent this 37 in excess 3, then 28 in excess 3. So what we do? We represent this 3 in excess 3. So that will be 0, 1, 1, 0, then 7, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 8, right? Now we add this. 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Now this 1 plus 0 plus 0 is equal to 1. Then 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Now 1 plus 1 is again equal to 0 with carry 1. 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Triple 1 is equal to 1 with carry 1. Then 1. Here we are seeing that this group basically generates carry. So here in this group we add double zero double one, because our algorithm says that if carry then add double zero double one. So we have to add double zero double one in this group, and in this group we have to subtract double zero double one because there is no any carry. Double zero double one gets subtracted. Now 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1. Okay, so here will be 1 and there 0. 1 minus 1 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to 0, and 1 minus 0 is equal to 1. So this would be your answer. Similarly, next question is, third question is, whichever 247, 247.6 plus 359.4. बनाइए आपका क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को. क्या करना पड़ेगा? 2 को रिप्रेजेंट 4 को, फिर 7 को, फिर 6 को, इसी तरह से इन सब को रिप्रेजेंट कीजिए एक्सेस 3 में. 0 1 0 1, 0 triple 1, 1 0 1 0 dot 6. One double zero. Now this 359.4. आप लोग अपना बनाते जाइए, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ.
1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Now 1 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1 plus 0, 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Again 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Then 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. 1 plus 1 is equal to 0 with carry 1. Triple 1 is equal to 1 with carry 1. दिस हो गया। अब देखिए जिस जिस ग्रुप में आपका कैरी जनरेट हो रहा है उस ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 0000। ठीक है, ऐड कीजिए। बनाइए, सॉल्व कीजिए इसको। बन जाना चाहिए, वेरीफाई कर लेना है अपने को सब लोग। वेरीफाई करके बताइए आया कि नहीं। चैट बॉक्स में लिखेंगे कितने लोग का हुआ। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपका डेसिमल नंबर में। दोनों को ऐड करने पे आता है 607.0। सो योर आंसर शुड बी, ये जो भी यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1001, फिर 0011 0011 1010 1010 और यहाँ 0011। ये आना चाहिए, है ना। आई होप सबका आ गया होगा। आ गया है ना सबका। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next is XS3 subtraction. Write down topic XS3 subtraction. XS3 subtraction. इस XS3 subtraction में भी कुछ एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे बिट वाइज। इफ देयर इज नो बोरो, इसमें भी क्या है, या तो बोरो होगा या फिर नो बोरो होगा। अगर नो बोरो देन ऐड
0011 एंड इफ बोरो, अगर बोरो होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन सब्ट्रैक्ट 0011। ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो इसमें भी क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज 267 माइनस 175। आपको क्या करना है? परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन XS3 कोड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 267 माइनस 175। सेकंड क्वेश्चन इज 57.6 माइनस 27.8। ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। 0101 1001 1010 0100 1010 1000। इसको क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन लिखना जरूरी है, साइन जरूरी करना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चेक करने वाला को कुछ नहीं पता है, वो सब कुछ चाहता है कि जो कैंडिडेट है वो लिखे। नाउ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस ग्रुप ने कोई बोरो नहीं लिया। चलो, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विथ बोरो 1। बोरो कहाँ से किया? इससे करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विथ बोरो। तो बोरो जैसे ही करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इस ग्रुप ने बोरो किया है इससे। ठीक है, तो इसने अगर बोरो किया है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 0011 को। इसको तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में नहीं बोरो किया है, इसका मतलब क्या करेंगे? 0011 को ऐड करेंगे। अब इसने बोरो किया, यहाँ 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, सब 0। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें बोरो नहीं लिया है तो 0011 ये क्या अपने को ऐड करना, क्योंकि इसने बोरो नहीं किया। अब देखिए, कहीं पे ऐड है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट है, इसको अपने हिसाब से उसको सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ ऐड है तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विथ कैरी 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1। नाउ दिस इज अगेन एडिशन। सो हाँ, एडिशन। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 plus 1 is equal to 1, here 0 and there also. So this would be your answer. Okay, आप मैच कर लीजिए सही है या नहीं है, कि गड़बड़ हो गया है। कुछ लगता है गड़बड़ हो गया है कि सही है? 267 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना होता है? 92 होता है क्या? Yes, sir. हाँ, तो 92 का मतलब क्या होगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। सो दिस इज 092 मींस 92। क्लियर? अब 57.6 माइनस 27.8, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। वन ट्रिपल 0 1010 पॉइंट 1001
0101 1010 101। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 1 minus 1 is equal to 0, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1, so here will be 0 and this is 0 1। तो 1 minus 0 is again 1, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1, borrow यहां से करेगा तो 0 हो जाएगा यहाँ। तो इसने बोरो किया है, तो बोरो करने का मतलब 0011 को सब्ट्रैक्ट करें। अब 1 minus 0 is equal to 1, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1, तो बोरो कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, तो दिस इज 0 एंड दिस विल बी 1 minus 0 is equal to 1 and 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1, बोरो कहाँ से करेगा, यहाँ ऐसे। अब इसने क्या किया है, इस ग्रुप ने भी बोरो किया है, तो क्या होगा, 0011 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 अगेन 0 एंड 0 minus 0 0। इसने बोरो नहीं किया, नो बोरो मीन्स ऐड करना, 0011। अब दो जगह सब्ट्रैक्ट करना है, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1, तो बोरो किया तो ये 0 हो जाएगा, 0 minus 1 is equal to अगेन 1 with borrow 1, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये 1 1 0 1। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 0 1 1 और यहाँ ऐड करना है 1 1 1 0 कैरी 1 आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। सर कुछ नया आवाज भी सुनाओ यार, सब वही आवाज सुनाई दे रहा है मेरे को। यस सर बोलने वाले, कोई और नया आवाज सुनाइए। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें से कुछ लोग ऑफलाइन वाले भी जुड़े हुए हैं क्या? हैं? यस और नो? ऑफलाइन वाले कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग हैं इसमें टोटल? 67। आज तो ऑनलाइन भी कम लोग ज्वाइन किए। चलिए ठीक है। So our next topic is ग्रे कोड। ग्रे कोड पहले नाम सुने हो क्या? ग्रे कोड के बारे में नाम सुने हो पहले कभी कोई? नो सर। नहीं सुने। तो देखिए ग्रे कोड GRAY, ग्रे कोड। पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड, फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है? नॉन वेटेड कोड। नॉट suitable for arithmetic operation, not suitable for arithmetic operation।
then not a BCD code. Not a BCD code. Also called unit distance oblique cyclic code. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, used in shaft encoders
मतलब अभी हमने G1 G2 G3 लिखा है, इसको G0 G1 G2 एंड G3 का फॉर्म लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, B0 B1 B2 B3। तो ये हमारे ऊपर नोमेनक्लेचर का है, कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको बेसिकली हम लोग करेंगे कैसे। लॉजिकल एक्सप्रेशन तो अपने को मिल चुका है, लेकिन अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है कोई बाइनरी नंबर को ग्रे में। ये क्वेश्चन जनरली पूछता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछेगा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन देखिए 1001, it is in binary, and we have to convert it in gray code. So what do we do? 1001. This one, yani MSB, will be written as it is. MSB will be written as it is. Then we take XOR of this one and this one. So what would be the result? 1 XOR 0. 1 XOR 0 is equal to 1 sir. 1. 1 XOR 0 is equal to 1, and 0 XOR 0? 0 0 XOR 1? 1 1. So this would be your gray code conversion. It's 1101. This would be a gray code of binary number 100. Okay. If we want to represent this any code or any digit in the gray form, then we must have to write a gray just after the ब्रैकेट। ओके, अब देखिए, अब अपने को करना है ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो हमने एक पॉइंट लिखाया था कि ग्रे कोड को हम साइक्लिक कोड बोलते हैं या यूनिट डिस्टेंस कोड ऐसा बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं उसको देखते हैं। देखिए अब आप लोग कन्वर्ट करके बताइएगा, है ना। जैसे डेसिमल डिजिट हम लोग ले रहे हैं 0 1 2 3। अब इसको 2 बिट में बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, 0 को 00 लिख सकते हैं, 0 1 1 को लिख सकते हैं, 1 0 2 को, एंड 1 1 3 को। एनी डाउट? Now if you want to convert this binary into gray, then what we write? Tell me fast. 0 0 को हम कैसा कितना लिखेंगे? 0 0 लिखेंगे। 0 1 को क्या लिखेंगे? 0 1 ही लिखेंगे। 1 0 क्या लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे। 1 1 को क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। Am I clear to all? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? yes sir. तो यहां आप देखिए, ग्रे कोड बाइनरी कोड में 00 0 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है, उसी का ग्रे कोड हमने किया 00 0 1 1 1 1 0। यहाँ देखिए ये 0 ये 0 सेम है, ये डिफरेंस है, यानी सिंगल बिट का डिफरेंस हुआ। यहाँ फिर देखिए ये सेम है, ये डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ सेम है, ये डिफरेंस, यानी कि सिंगल बिट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसी को अगर आप 3 बिट में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही होगा। 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं इसी ग्रे कोड को, सपोज दैट ये 4 5 तक करके देखते हैं, 3 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए किसको? बाइनरी नंबर को 3 बिट में देखो रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, है ना। देन 1 0 0, देन 1 क्या आएगा बताइए? 1 0 1 हो जाएगा ना 5 का बाइनरी में।
अब इसी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा बताओ? ये 000 आएगा, यस और नो? हेलो, कोई है भाई कि नहीं है? हेलो, यस सर। कुछ तो बोल भाई, हाँ या ना तो बोल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 000, ये 001, 011, 010, ऐसे ही होगा ना रिप्रेजेंटेशन, कुछ और आएगा? ऐसे ही होगा। हाँ, तो इस तरह से और भी करेंगे, तो इसमें भी देख रहे हैं कि सिंगल बिट का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड और साइक्लिक कोड। ग्रे कोड को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरह से समझाना पड़ेगा कि ड्यू टू सिंगल बिट डिफरेंस ग्रे कोड इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड और unit distance code. Now we convert gray code to binary. Okay, gray code to binary. ग्रे से बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ग्रे टू बाइनरी। So write down heading gray gray to बाइनरी। इसके लिए जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, क्या? Bn is equal to Gn. Bn minus 1 is equal to Bn XOR Gn minus 1. Bn minus 2 is equal to Bn minus 1 XOR Gn minus 2। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और उसके बाद आएगा B1 इज इक्वल टू B2 XOR Gn माइनस G1। B2 XOR G1। ठीक है, आप देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। 1101 ये हमारा ग्रे कोड में है, इसको वही सेम क्वेश्चन को लिया गया है, इसको अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी मतलब कोई नहीं, तो क्या करेंगे इसमें 1101, इसमें भी क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक, और इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर लेंगे, और जो भी आएगा दैट वुड बी रिटन है। कितना आएगा बताइए? 1 एक्सॉर 1 का वैल्यू कितना आता है? 0. 0। देन अगेन 0 एक्सॉर 0 कितना हो जाएगा? ये भी 0 आएगा। एंड दिस एक्सॉर दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। Yes, sir. So answer will be 1001. So this is the method of conversion of binary to gray and gray to binary. I hope you all have understood now. Okay. Am I clear to all? Yes, sir. Okay, fine. Now चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए।
नेक्स्ट टॉपिक इज एरर डिटेक्टिंग कोड। देखिए हम लोग कोड जब पढ़ रहे थे तो कोड मैंने बताया था आपको कि वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, है ना, और अल्फा न्यूमेरिक वगैरह होता है ना। उसमें एक एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड भी होता है, ठीक। तो वेटेड नॉन वेटेड का हम लोग जो जो हमारे सिलेबस में था उसको हमने पढ़ लिया, जैसे BCD हो गया, और उसके बाद नॉन वेटेड में एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड भी हो गया, तो उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरर डिटेक्टिंग कोड में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एरर डिटेक्टिंग कोड होता क्या है पहले उसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो एरर डिटेक्टिंग का मतलब ये है कि जैसे यहां पे सेंडर है, ठीक, दिस इज योर सेंडर एंड दिस इज योर रिसीवर, ओके। सेंडर ने कुछ डेटा भेजा रिसीवर को। अब सेंडर ने सपोज दैट भेजा 1101 और रिसीवर को मिला 1111। क्या ये सही है? डेटा करेक्ट नहीं है। तो जो सेंडर ने भेजा वो डेटा रिसीवर को नहीं मिला। सेंडर सोच रहा है कि हमने जो डेटा भेजा वही रिसीवर को मिला है, और रिसीवर सोच रहा है हमने जो डेटा पाया वही सेंडर ने भेजा होगा। तो कुछ ऐसा बीच का एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे रिसीवर को भी पता चल जाए कि जो डेटा हमारे पास आया वो सही डेटा आया है, और सेंडर को भी पता चल जाए कि हमने जो डेटा भेजा है वो सही डेटा वहां पहुंचा। यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल सिंगल बिट का डिफरेंस आ रहा है 1 और ये लास्ट बिट भी 1 सही है, बट एक ये 0 ये क्या कन्वर्ट हो गया 1 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है बेसिकली, ठीक। तो ये जो सिंगल बिट का डिफरेंस आ रहा है या सिंगल बिट का कोई एरर जब आता है तो उस एरर को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज डेटा जो है सो गलत पहुंचता है रिसीवर के पास। तो बेसिकली सिंगल बिट का हो या 2 बिट का हो या 4 बिट का हो या n नंबर ऑफ बिट हो, उसको डिटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड, ओके। इफ वी आर कंसिडरिंग about the single bit error, then one important method and one of the highlighted method is parity, okay. So parity is one of the important error detecting code method in which basically we detect the single bit error, okay. अब देखिए ये जो पैरिटी है ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑड पैरिटी, एक होता है ऑड पैरिटी, ठीक है, और दूसरा होता है इवन पैरिटी, इवन पैरिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर पैरिटी होता क्या है, पहले इसको तो समझें एग्जैक्टली। तो अब क्या हो रहा है कि सेंडर ने 1101 भेजा और रिसीवर को 1111 पहुंच गया, हम एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बिट इस डेटा के साथ साथ, दिस इज आवर व्हाट डेटा, ये डेटा है, ठीक, या मैसेज है, जो भी व्हाट डेटा है, डेटा के साथ एक और एक्स्ट्रा बिट हम लोग भेजते हैं, एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। सेंडर क्या करता है, एक्स्ट्रा बिट जो है अटैच कर देता है या ऐड कर देता है हर एक वर्ड के साथ, हर एक डेटा के साथ, एंड दिस एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड पैरिटी। इसी एक्स्ट्रा बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं। अब ये एक्स्ट्रा बिट जो है सो उसी के साथ यहाँ पे ये पहुंचेगा रिसीवर के पास, ठीक। अब इसी एक्स्ट्रा बिट को हमने क्या बोल दिया, पैरिटी बोल दिया, ठीक। अब वो पैरिटी होता क्या है, वही पैरिटी आइदर 0 होता है या 1 होता है। अब मैकेनिज्म ऐसा कुछ होता है कि आइदर वी यूज ऑड पैरिटी स्कीम और इवन पैरिटी स्कीम। सपोज दैट वी आर यूजिंग ऑड पैरिटी स्कीम। तो ऑड पैरिटी स्कीम में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हैं,
ये डेटा के साथ जो एक्स्ट्रा बिट भी हम लोग भेजते हैं वो, ठीक है। नंबर ऑफ वन इज काउंट, नंबर ऑफ वन इज काउंटेड, ठीक, काउंट करेंगे नंबर ऑफ वन को। सपोज दैट हमने यहाँ काउंट किया, क्या काउंट किया कि 1101, यानी कि नंबर ऑफ वन कितने हैं, 3 है, और हम यूज कर रहे हैं ऑड पैरिटी स्कीम को, ठीक है। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ वन क्या है, ऑड में ही आ गया, 3 मतलब क्या हो गया, ऑड ही होता है ना। तो और ऑड पैरिटी स्कीम को हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस डेटा के साथ जो बिट सप्लाई करेंगे वो 0 सप्लाई करेंगे। अब इसके पास जो पहुंचा है ऐसा कुछ पहुंचा है, ये नंबर ऑफ वन को काउंट करेगा रिसीवर, तो नंबर ऑफ वन काउंट करता है, देखता है अरे तो 4 हो गया यार, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घपला हुआ है बिट का, क्योंकि यहाँ इसको पता है ना रिसीवर को कि ऑड पैरिटी स्कीम को फॉलो किया गया है, सेंडर को भी पता है कि हमने ऑड पैरिटी स्कीम को फॉलो किया है। रिसीवर को जैसे ही नंबर ऑफ वंस काउंट करता है तो वो देखता है कि 4 है, यानी ये क्या हो गया, इवन हो गया, जबकि हमने ऑड पैरिटी स्कीम को सब ये किया था, फॉलो किया था। तो यहीं पे जो है सो वो डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे एरर है डेटा के साथ, गॉट इट। तो एरर है डेटा के साथ वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक। इसी तरह से सपोज दैट इवन पैरिटी स्कीम इसने यूज किया, तो अगर इवन पैरिटी स्कीम यूज किया है, यहां भी नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाता है। देखिए नंबर ऑफ वंस को काउंट किए, 3 है। तो ये जो 3 है तो ये तो इवन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट जो यहाँ पे देंगे वो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब ये इवन में हो गया है ना। अब यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये तो इस 1 के साथ ही पहुंचेगा, यहाँ काउंट करेगा तो काउंट करता है कितना, 5 है। ये तो देखा रिसीवर कह रहे हैं तो ऑड है, जबकि इवन पैरिटी स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ एरर है। तो दिस स्कीम इज कॉल्ड पैरिटी स्कीम, या और अगर ऑड पैरिटी स्कीम यूज कर रहे हो तो ऑड पैरिटी स्कीम, इवन कर रहे हो तो इवन पैरिटी स्कीम। बात समझ में आ रही है? आई होप एवरीबडी गेट क्लियर। सो राइट डाउन एरर डिटेक्टिंग कोड में सबसे पहले लिखिए पैरिटी क्या होता है। पैरिटी लिखिए an extra bit called parity bit. Parity bit is added to each word being transmitted. फर्स्ट लिखिए ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी में लिखिए द पैरिटी बिट सेट टू 0, द पैरिटी बिट सेट टू 0 और 1 0 और 1 at the transmitter such that total number of 1 in the word including the parity bit is an odd number, नेक्स्ट लिखिए इवन पैरिटी, they are the parity bit set to 0 or 1 at the transmitter such that
total number of such that total number of 1 in the word including the parity bit is an even number. Is an even number. नोट करके लिख लीजिए, पैरिटी स्कीम इज यूज्ड फॉर सिंगल बिट एरर ओनली. सिंगल बिट एरर ओनली. बस आज इतना ही रहने दो. मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूं, आप अटेंडेंस लिखिए. ठीक है.